मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। I thank the Lord. लास्ट वीक में हमने यही सुना कि अपना क्रूस उठाओ। Last week we were discussing on the subject of taking up your cross. लूक चैप्टर 9 वर्सेस 23 में लिखा है। Luke chapter 9 verse 23. मैं कोई वचन पढ़ना नहीं चाहता इस समय, I don't want to go to that verse right now क्योंकि 3 ही मिनट है खाली। because there are just 3 minutes. और यीशु मसीह ने बोला कि अपना रोज का क्रूस उठाओ। So the Lord Jesus said that you have to pick up your cross daily. और उससे पहले 22 में पढ़ेगा। And prior to that we read in verse 22. यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं The Lord Jesus is telling his disciples कि पिता ने मेरे लिए प्लान बनाया है that the Father has a plan for me, कि मैं दुख उठाऊं that I suffer, और ये जो मिस्र लोग हैं या बाकी सब लोग हैं मुझे सताएंगे और मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे, मैं तीसरे मरूंगा फिर वापस 3 दिन मर जाऊंगा फिर वापस तीसरे दिन जी उठूंगा। that many people are going to trouble me, they're going to persecute me, crucify me, but on the third day I will rise again. और वचन इधर ही खत्म नहीं होता And the verses don't just end there. और आगे इस तरह से लिखा है 23 में, Forward it's written like that, further it's written like that. जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है All those who want to follow me, अपना क्रूस उठाओ pick up your cross, और अपने आप के मर जाओ die to yourself और मेरे पीछे चलो। and follow me. और यीशु मसीह 22 में इस तरह पहले से बता दिया कि मैं ये सफर करने वाला हूँ, इसका मतलब तुमको भी जो मेरे पीछे आना चाहता है वो सफरिंग है। And in verse 22, Jesus is making it very clear that I myself am going to suffer, so all those who are going to follow me will also suffer. इससे पहले मुझे कोई मुझे बता नहीं था कि क्रूस उठाना चाहिए। Prior to this, no one had told me that I need to pick up my cross. जैसे हमको विश्वास करना चाहिए ये मुझे बताया था। I was just told that you need to believe. और इधर आने के बाद मुझे सीखा कि क्रूस उठाने का मतलब क्या है। But once I came to this church, I learned what does it mean to take up the cross. तो क्रूस उठाने का मतलब क्या हो सकता है? So what does it mean to take up the cross? अभी हो सकता है सभी को पता भी रहेगा। Could be that many of you know that. लेकिन बाइबल में लिखा है Bible says कि सुनने वाले मत बोलो, कि सुनने वाले मत बोलो, सिर्फ that don't just be hearers, और उसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकली उसको चलो, उस पर but चलने वाला बनो। but be doers of the word and walk in it. काफी बार सुने, Many a times we listen, बट मेरा एक सवाल है but my question is, कि हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या उसको लाइफ में? are we practicing what we are hearing in our lives? और क्रूस उठाने का मतलब ये है कि हम अपने आप को खुद के इच्छा को मर जाना और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। Taking up the cross simply means that I die to my own will and I fulfill the will that God has for me. तो मैं जीसस के बारे में सोच रहा था एक बार। I was thinking of Jesus once. जीसस बोल रहे हैं कि क्रूस उठाओ, तो मैं देख रहा था कि जीसस ने कितने क्रूस उठाया। I was seeing that Jesus said that you need to take up the cross. So I was seeing where Jesus himself had taken up the cross. मैं बताऊँ वचन, मैं अभी वचन नहीं बताऊंगा। I will not go to that verse right now. पर जब ये पहला जो मिरेकल यीशु मसीह पानी से ताकत बनाता है, But the first miracle in which Jesus turns water into wine, उसकी मम्मी इंटरफेयर करती है उस चीज में। over there we see his mother interfering there. और इंटरफेयर करते समय जीसस बोलते हैं कि ये महिला तेरा मुझसे क्या काम? And ये महिला तुझसे मेरा क्या काम? so at that point of time, Jesus turns to his mother and says, "Woman, what do I have to do with you?" मतलब वो इंटरफेयर करने के लिए रोक रहे हैं, उसको नहीं पता उसकी माँ को। So he was trying to stop his mother from interfering. वो क्या वो आसान था जीसस के लिए? Was that easy for Jesus? बचपन से उसको पाला है, A woman who has taken care of him since he was a child. उसको यहाँ से लेके वहाँ तक मिस्र देश में लेके दौड़ा बचपन में। She used to take care of him, taking him from Egypt, from Israel to Egypt and then back. 9 महीना पेट में रखा था। 9 months she bore him in a womb. आज ये 30 साल का ऊपर हो गया, मुझसे क्या काम है ऐसा बोल रहा है। Now he's 30 years old and now he's turning back and saying, "Woman, what do I have to do with और you?" जीसस के लिए आसान नहीं था। This was not easy for Jesus. उसके लिए, लेकिन वो यीशु के मतलब परमेश्वर का जो प्लान परमेश्वर ने रखा था वो उसको पूरा करना था। But he had a goal in mind and that was to fulfill the plan that the Father had for his life. तो कहने का मतलब वहाँ पर जीसस के लिए भी एक सफरिंग था कि माँ को इस तरह से बोले। And over there we see that even Jesus went through a suffering when he had to speak that way to his mother. हो सकता है उसका मम्मी को थोड़ा दुख हो गया, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? Could be that at that point of time Mary must have felt bad thinking, why is my son speaking to me this way? उसको पता था कि यीशु मसीह को मेरे को परमेश्वर का प्लान पूरा करना है। But the Lord Jesus knew that he had to fulfill God's plan for his life. और उसी तरह हमने देखा कि यीशु मसीह भी क्रूस उठाया। And I see that even in that situation the Lord Jesus took up his cross. और इसमें से हमको बता रहे कि तुम भी क्रूस उठाओ। So the Lord Jesus is saying, you too take up your cross. और क्रूस उठाना कोई आसान काम नहीं है। Taking up the cross is not easy. बट हमको सफरिंग है उसकी। There is a suffering involved. हो सकता है कोई हमको इंसल्ट कर रहा है। Could be someone is insulting you. हमको कितना मुश्किल है चुप रहना, वो एक सफरिंग है। It's very difficult at that point to keep quiet. It's the suffering that we और go वहाँ through. पर क्रूस लेकर लॉर्ड मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलना चाहता, बस लॉर्ड परमेश्वर तूने कहा कि अपने शत्रु को क्षमा करो। So at that point of time I say, Lord, I'm going to take up my cross. I'm not going to respond. You just told me to forgive and I'll do that. बट एक दिन भी नहीं गए
एक दिन. एक दिन में नहीं होएगा, And one day, many, मतलब एक दिन में नहीं होएगा। this won't happen in one day. रोज एक ही, इसलिए जीसस ने बोला रोज अपना क्रूस उठा। That's why Jesus says every day you have to take up your cross. मैं कभी सोचता हूँ कि सुसाइड जो करते हैं, Many a times I think about those people who commit suicide. सुसाइड करना ये आसान काम नहीं। To commit suicide is not easy. तो कहने का मतलब मैं जब वो खुद का लिया हमको मरना, ये कितना तकलीफ होता है मरने के लिए खुद What का। I'm trying to say is that when we have to die to our own selves, it's very difficult. पर जब हम मरेंगे But when we die, तो हम मरने के बाद परमेश्वर हमको जिलाएगा उस चीज से। so when we die, in that death, the Lord Jesus will resurrect us or raise us from that death. जैसे कि मैं एग्जांपल बोला कि मैं इस व्यक्ति को कुछ नहीं बोलना चाहता, वो मेरे में से किस तरह बात कर रहे हैं आगे देखिए। Like I gave the example of this situation wherein I don't want to respond to a person who's insulting me or slandering me. और तो सफरिंग है, जब हम उस टाइम में मर जाएंगे तो परमेश्वर हमको उसका नेचर देगा, उसका लाइफ देगा उसका। So that's the suffering that I go through, and at that point of time when I die, the Lord Jesus will then impart His nature to me. और ये करते करते हमारा लाइफ इतना आसान हो जाएगा क्रूस उठाने के लिए। And as we continue to do this, slowly and slowly, it will become very easy to take up the cross. और ये क्रूस हमको रोज डेली उठाना है। And we have to take up this cross every single day. और ये भी रोज मतलब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे ताकत दे ताकि मैं क्रूस उठाऊं। And this is my prayer every day, that Lord Jesus give me the strength to take up the cross every day. जीसस ने बोला बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। Lord Jesus said, all of you who are heavy laden and burdened, come to me. और हमको लग रहा है कि क्रूस उठाना हमको बहुत बोझ लग रहा है। And if I feel that taking up the cross is a big burden, और जॉन ऐसे कहते हैं कि परमेश्वर का आगे पालन करना कठिन काम नहीं है। and in the book of John it says that to obey the Lord of the commandments of God is not a difficult thing. हाँ, कैसे हो सकते हैं? How can this be true in our lives? इसलिए हमको परमेश्वर का आत्मा से भरना है। We need to be filled with the Holy और Spirit. हम क्रूस नहीं उठाए हम डिसाइपल नहीं बन सकते हैं। Until the time we do not pick up our cross, we cannot be हम disciples. क्रूस को नहीं उठाने से मतलब प्राइड से चल रहे हैं। And if you are not taking up the cross, it simply means that you are walking in pride. इसलिए यीशु ने बोला कि मेरे पास आओ, मुझसे सीखो मैं किस तरह दीन हूं मन में। That's why the Lord Jesus said, "Come to me and learn from me, because I'm humble in heart." दीन लोग ही सीख सकते हैं कि क्रूस उठाने का। And only the humble can learn how to take up their cross. दीन लोग ही समझ सकते हैं कि मैं क्रूस उठाकर कैसे मुझे मुश्किल है, परमेश्वर को सामर्थ देगा, ग्रेस देगा। Only the humble people can realize that I can take up the cross only by the grace and strength that God gives me. मेरे प्रिय भाइयों, My dear brothers, ये बहुत जरूरी है एक क्रिश्चियन लाइफ के अंदर। this is the most very important thing in our Christian life. कि हमको क्रूस उठाकर अपने खुद के लिए मरना रोज। That we to take up the cross and die to our own self every day. और हो सकता है परमेश्वर हर एक के लिए कुछ ना कुछ प्लान किया है It could be that the Lord Jesus has a plan for each one of us, और वो हमको क्रूस उठाकर ही हम उसको पूरा कर सकते हैं। and we can only fulfill it by the means of taking up the cross. मार्क 10 उसके 29 में ऐसा लिखा है, पेत्र ने पूछा कि प्रभु हमने तेरे लिए अपना घरदार, बहन भाई, माँ बाप, अपना जो प्रोफेशन था, व्यवसाय था, वो सब छोड़ के आपके पीछे आ गए, तो हमें क्या मिलेगा? तो प्रभु ने वहाँ कहा कि आपको इस जीवन में परसिक्यूशन के साथ 100 टाइम्स भाई बहन, घर, माँ बाप सब मिलेंगे, और इटरनल लाइफ में मतलब सार्वकालिक जीवन में सार्वकालिक जीवन आपको मिलेगा। ये प्रभु ने गारंटी दिया। तो वही है कि मैं जब फ्राइडे गया था बाइबल स्टडी के लिए, तो मैंने बहुत सीखा, और मेरे जीवन में जो मेरे माँ बाप मुझे फोर्स कर रहे थे एक चीज़ के लिए, पर्सनल एडवाइस, उसके लिए मुझे आंसर मिला बाइबल स्टडी में। तो मैंने वहाँ सीखा कि मुझे क्रूस उठाना चाहिए और उसे ना कहना चाहिए। तो जैसे कि मेरे मतलब घर वाले फोर्स करते कि तुझे शादी करना चाहिए जल्दी वगैरह, तो मैंने ब्रदर से सजेशन दिया कि मतलब ये उदाहरण दे रहा हूँ मैं, जस्ट क्योंकि प्रैक्टिकल उदाहरण मैं दे रहा हूँ, बाकी कुछ मैं ज़्यादा मतलब ये नहीं किया। तो ब्रदर से मैंने शेयर किया, ब्रदर मम्मी डैडी ऐसे कहते, तो ब्रदर ने कहा कि ब्रदर ने मुझे आंसर दिया प्रॉपर, मुझे मिल गया आंसर कि मुझे क्रॉस उठाना चाहिए, ना कहना चाहिए एक्चुअली, भले वो कितना भी मतलब ये, क्योंकि ये उम्र नहीं है, ये मेरे अभी मतलब काम करने का ये, और मुझे अभी जैसे ब्रदर जैक का मैंने एक बुक पढ़ा रात को, प्रैक्टिकल डिसेबलशिप, उसमें क्लियरली ब्रदर ने कहा था कि अगर माँ बाप भी आपके बीच में आते, प्रभु को मतलब आप सेकंड प्लेस देते और माँ बाप को आप फर्स्ट प्लेस देते, और प्रभु की आज्ञा मानने में अगर माँ बाप का आपका मतलब बीच में आते, तो रिफ्यूज मत एक्सेप्ट करो, क्योंकि प्रभु बाकी का चीज़ के लिए ये करेगा, क्या बोलते हैं, टेक केयर करेगा। क्योंकि इसमें लिखा है यहाँ, तो मुझे आंसर मिला कि मार्क 10:27 में कि प्रभु ने वहाँ कहा कि यीशु मसीह ने वहाँ कहा कि
परमेश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं है। तो वो मेरी कंफर्ट है कि परमेश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं है। अगर मैं माँ बाप को ना कहूँगा और अपना क्रॉस उठाऊँगा डेली, मेरी इच्छाओं को, मेरी सेल्फिश वे को जो मुझे आगे नहीं जाने देती और मैं आगे बढ़ूँगा, अगर वो क्रॉस लेके, पर कोई तो मेरे लिए हेल्प के लिए है, अब वो है परमेश्वर। परमेश्वर ने मुझे अकेले नहीं दिया वो क्रॉस, परमेश्वर मुझे सपोर्ट करेगा। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर मेरे साथ है उस क्रॉस उठाने में, मैं अकेला नहीं और मैं कर सकता हूँ। तो पावर ऑफ सारा